Hare Ram. You'll be surprised when you read Vedas or Upanishads or Vedanta or any source text. You'll be surprised that they are ununderstandable. I mean, the greatest of geniuses cannot understand them. No, really, they are ununderstandable. Not difficult, but they're ununderstandable. So that's why there are subjects like hermeneutics, like ontology, like epistemology. These are subjects in the universities. How to understand these books? But well, the greatest surprise is that when that something happens inside you, that's something which we are seeking through books. When it happens, and in lay terms, if I may say, when love happens inside you, when love happens inside you, love is a mystery, as much a mystery as life is. When love happens, because it's not scientific, love is not scientific, love just happens. And it is right, it is the privilege and right of all human beings to experience love, because that's our very nature. And that's been suppressed by the societal norms, that's been suffocated and suppressed. So, well, when love happens inside you, and now you open Vedanta or a Bible or a Quran Sharif or a Guru Granth Sahib, you will find that whatever is happening inside me is written in that book. You don't try to understand them. You just say that, oh my God. So it was written sometimes 400 years back, sometimes 2000 years back, sometimes 5000 years back. And let's say Patanjali's Yoga Darshan, or let's say Kapil Muni's Sankhya was written prehistorically. We don't know, dateless they are. So that means this love is an eternal subject. Only wait is for love to happen. When love happens inside you, everything will become crystal clear. No, you will not have to go to university to know what is hermeneutics and what is epistemology and what is ontology. These are just words. By doing a PhD, you would not understand them. Hare Krishna, Vaheguru. And love is a subject which is so beautifully mysterious, yet I share some things about love. When I use the word love, know what I'm speaking about. I'm speaking about your God. You call him God, but God is love. God is nothing but love. So, well, let me tell you about love. Love is a bilateral phenomenon. Love can never happen unilateral. Let's say Ganga flows towards the ocean. Why? Because Ganga is convinced that he needs me. If this conviction is lacking, she will not flow towards. You cannot think of love unilaterally. There are examples where a lover is fond of his beloved whole life and she doesn't respond. Might have heard about, might even think about it. No, it is also not unilateral. He, in his own mind, is convinced that she needs me. He is imagined that she needs me. Without that, how would that attraction come? So, how is this original love between God and you? What do you say that about that? God continues to love you because he knows that you need him.
But you seem to have gone astray here and there. You're experimenting without him if you can exist, but he knows you can't exist without him. So he takes some form or the other to remind you, let us begin a relationship. Because without a relationship, you die alone and it is a miserable death. Whenever we talk of death, you start thinking about that tomorrow when death will come, be it at 100 years, or sometimes we want to live beyond 100 years also. Yes, there are people, some gurus who have lived 120, some 150, 160, but finally death has to come. Be it 200, it has to come. Nobody has ever lived forever. So we are not talking of that death which is going to come tomorrow. We are talking of every moment death. When you are living alone, you are dying. When you form a relationship, you become alive. Experience it yourself. You think breathing is living. You think heart beating is living. Hare Ram, it's not. So the day you experience that eternal relationship between Atma and Paramatma, what is Atma and Paramatma? Your reality, your own reality. You are not the body, you are not the mind, you're not the intellect, you are not that purest of everything which is called heart, chitta. You are beyond even that. You are Chetana, consciousness itself. The word Chetana should make you think that if that is me, then what else is there? Everything else is achetan, is jad. Your mind, your body, your intellect, your ahankar. It's all already dead. It's not alive. So God continues to love you because He knows He's that like that lover who knows that my beloved, she loves me, she needs me, but she doesn't care. And this life comes to an end also. But God never comes to an end. He'll keep chasing you, life after life, till one day love wakes up. And the day love wakes up, no hermeneutics, no epistemology, no ontology. Nothing is required. You don't need to read Vedanta. Vedanta will come out of you. This is a mystery. You will experience it. Everything will become understandable. Whole life will become understandable. All books will become understandable. All scriptures will be understandable. Simro, simmer, simmer, sukh pav. Everything this will start having a meaning. What does it mean, simro, simmer? It's what do I say? It's useless. Keep speaking. Simra, simar, simar, sukpa. Oh, it will come out of your heart. कि याद आ गया बस सुख ही सुख है अब तो मुझे अपना प्रेम याद आ गया प्रेम भूला हुआ था वो याद आ गया why was God chasing you why sometimes you might acknowledge and reciprocate and the moment you reciprocate it is called love till then it was a unilateral chasing. He was chasing. Why unilateral? No, no, no. He knows that you need him. He is 100% convinced that you need him. Without him, he knows that you are dying.
You are doing degrees after degrees. You're going to Switzerland and to Srinagar and to Pahalgams and creating chaos here and there. You actually need is only Him and nothing else. And the day that Him is realized, then Gurbani will not have to repeatedly, million times keep telling you, Rahao, Rahao, ठहर भी जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। रहाओ मतलब ठहर जाओ, ठहर जाओ। मगर आप कैसे ठहरेंगे जब तक भगवान नहीं दिखेगा? और भगवान क्या होता है? प्रेम। जब तक प्रेम नहीं जागेगा, तब तक आप कैसे ठहरोगे? जब प्रेम जाग जाएगा। और प्रेम एक ऐसी मिस्ट्री है जिसकी कोई डेफिनेशन, क्योंकि वही आपको रेस्टलेस भी करती है, वही आपको रेस्ट भी देती है। अब क्या है फिर प्रेम? हरे राम, वाहिगुरु। वही आपको बेकरार करती है और वही आपका करार भी है। क्या है प्रेम? वही आपको बैठने नहीं देती और वही आपको बिठाती है। फिर आपको कुछ और नहीं चाहिए होता, बस प्रेम ही चाहिए। You are ready to die for that, because this death of this body is not really death. You don't bother about the breath stopping, breathing stopping, because this is not true life. सो जो भी कोई संत महात्मा है, वो तो यही तो बोलेगा, अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम। चलो तुम्हें बताएं प्रेम क्या होता है। अथा तो द होल नारद भक्ति सूत्र बिगिन दिस वे। चलो तुमको बताएं प्यार क्या होता है। अथथो, अथतो भक्ति व्याख्या श्याम। चलो बताएं तुम्हें भक्ति क्या होती है, प्रेम होता क्या है। अल्टीमेट भक्ति इज द लव बिटवीन गॉड एंड आत्मा एंड परमात्मा, नॉट जस्ट द बॉडीज। ये बॉडीज क्या है? प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम, भूतेन्द्रिय आत्मक, भोग अपवर्गार्थ, दृश्य। मतलब इतनी सारी संस्कृत है, मगर इस याद थोड़ा करनी पड़ती है। दिस इज एन एक्सपीरियंस कि जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है। वो दिन रात ही तो है ना, बदलता रहता है हर वक्त। माइंड है ना जो हर वक्त बदलता रहता है, कभी खिल जाता है, कभी बुझ जाता है, कभी बीच बीच में होता है, कभी ये लेना कभी वो लेना। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, पंचभूतों से, महाभूतों से। और पूछता रहता है कि भूत होते हैं कि नहीं। खुद बना ही भूत है ही भूत। मगर लोगों से पूछता रहता है कि भूत होते हैं कि नहीं होते। आप ही भूत है, भूत लोगों से पूछ रहा है, भूतों से पूछ रहा है कि भूत होते हैं कि नहीं। I mean, what a paradox it is। और लोग डरता है कि डरते क्यों है, डर क्यों लगता है? अरे भूत नाम ही डर का है, भूत होता ही डर है, तो डर तो लगेगा ही। भूत को तो डर लगेगा ही, वो खुद ही भूत है। भूतों से डर भी लगेगा उसको, खुद आप भी भूत बना हुआ। सो शास्त्र ही नहीं, आपका मन कहेगा कि भूत इंद्रियात्मक, भूतों से और पंच ज्ञान इंद्रियों से और पंच कर्म इंद्रियों से बना हुआ और मन से बना हुआ ये दृश्य है। नहीं नहीं, उससे पीछे भी तन्मात्राएं हैं, अहंकार है, चित्त है, ये सब कुछ जो है ना, ये सब आगे पीछे ऐसे ऐसे करता रहता है हमेशा ही, कभी भी स्टेबल नहीं होता। क्यों? भोग अपवर्गार्थम दृश्य, ताकि इस हलचल के अंदर आपको अपनी रियलिटी एक्सपीरियंस हो जाए कि आप कौन है। फिर कोई शब्द न रह जाएंगे जब पता चलेगा कि आप कौन है। फिर रहाव हो चुका होगा।
हरे कृष्णा। फिर इस बॉडी को हिलना बंद करने की जरूरत नहीं है, आप हिलते नहीं है कभी भी, अचल है। बॉडी तो वैसे भी अगर मैं ऐसे करके बिठा भी दूं तब भी सांस तो हिलते ही रहेंगे, धड़कन तो चलती रहेगी। ये बॉडी तो ऐसे ही रहेगी हमेशा ही। कभी सो जाएगी, कभी उठ जाएगी, कभी काम करने चले जाएगी, कभी जिम चले जाएगी, कभी इधर उधर जाके खाना पीना खाएगी, कभी कोई फ्रेंड्स मिल जाएंगे, ये सब तो बॉडी के साथ होगा ही। मगर आप तो आप हैं, आप तो मिल चुके होंगे, आपका मिलन हो चुका होगा, आपका योग हो चुका होगा, योग सिद्ध हो चुका होगा, कैवल्यम होगा, केवल एक ही होगा, वो ही दो हैं। आपको शिव शक्ति के दर्शन नहीं होंगे, आप स्वयं शिव शक्ति हो चुके होंगे। दर्शन तो किसी और चीज के किए जाते हैं ना, आप स्वयं शिव शक्ति हो चुके होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हैं। यू ऑलरेडी आर शिव शक्ति। आपको होना नहीं है, बस आप भूल गए। भूला कौन है? शक्ति भूल गई। जब शक्ति भूल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अबला। अबला मतलब बल है ही नहीं। और बल, अबला को कैसे बल आएगा? जब तक बलम नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। बलम मिलेगा तभी तो अबला को शिव के दर्शन होंगे। और शिव तो पीछा छोड़ेगा नहीं, शिव तो कुछ ना कुछ बन के आता रहेगा। शिव इज नॉट दैट सिंगल फॉर्म। शिव इज ब्लेसेडनेस, शिव इज लव, शिव इज सुंदर, शिव इज सत्य, सत्यम शिवम सुंदर। शिव इज द ट्रूथ which is hidden inside you. It is just that you haven't accepted love. The day you open your doors, love comes laughing by and cries, I enter everywhere. रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर कोई लाख चुराए अजी सनम से, वो फिर भी आ ही जाता है जब दिल आना होता है। जब हो जाता है तब पता चलता है कि ये क्या हो रहा है मुझे, ये कुछ कुछ क्यों हो रहा है। और जब होगा तो आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। चुपचाप बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, मगर अकेले नहीं हैं। हरे राम। अकेले हैं मगर अकेले ही नहीं हैं, कभी भी अकेले नहीं। ऑल द टाइम आपके साथ कोई है। ये आपका एक्सपीरियंस होगा। फिर आपको गुरबानी और भगवत गीता पढ़नी नहीं पड़ेगी, आपके अंदर से निकलेगी। हरे राम। The day you experience love, no, you will not, I'll not have to tell you भगवान क्या होता है। आपको पता चल जाएगा भगवान क्या होता है। भगवान मतलब मुझे यही तो चाहिए था, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, बस हो गई प्यार की हर तमन्ना जवां। जवां क्या होता है? यंग क्या होता है? यंग ही तो डरते हैं ना, हम यंग नहीं रहते हमेशा, बूढ़े हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक आदमी को बूढ़ा होना ही है। नहीं, लव इज एवर यंग। वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। ऑलवेज अलाइव, जवां मीन्स ऑलवेज अलाइव। मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां, ये खामोशियां, ये तन्हाइयां। फिर आपको अकेले रहना अच्छा लगेगा। यू विल वांट कि थोड़ी देर मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, थोड़ी देर में चुप करना चाहता हूँ, अकेला बैठना चाहता हूँ। तो फिर आपकी नमाज शुरू हो जाएगी। 5 नमाज के लिए आपको जबरदस्ती नहीं बोलना पड़ेगा किसी। आप खुद चाहेंगे मैं अकेला होना चाहता हूँ, कुछ देर तो अकेला होना चाहता। यू विल फाइंड अ प्लेस टू रेस्ट। फिर उसका नाम रख दोगे आप, एटिमोलॉजी बोलते हैं, फिलोलॉजी बोलते हैं।
ये सब्जेक्ट हैं फिलॉसफी के। मतलब शब्द बनते कैसे हैं? शब्द व्युत्पन्न विज्ञान, बनते कैसे शब्द? फिर फिलॉलॉजी, फिर मतलब वो शब्दों के मीनिंग क्या बन जाते हैं? यू विल फाइंड रेस्ट, यू विल ऑल द टाइम बी लुकिंग फॉर रेस्ट, होल डे। सो आप रेस्ट रूम चले जाओगे। और फिलॉलॉजी इसके, अभी रेस्ट रूम तो बाथरूम को बोलते हैं। वेरी फाइन, डजेंट मैटर। अब बाथरूम में ही चले जाया करो बार बार। सो आप कहोगे मैं बाथरूम जा रहा हूँ, नो नो, आजकल तो उसको रेस्ट रूम बोलते। सो आप रेस्ट रूम जाओ, वहां जाके आपको तो एकांत चाहिए होगा ना। हर वक्त एकांत चाहिए हो। यू विल फाइंड प्लेस, फाइंड मोमेंट्स टू बी अलोन। ये खामोशियां, ये तन्हाइयां, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जगह। आपको कोई नहीं चाहिए होगा, बस अपना एकांत चाहिए होगा। क्योंकि उस एकांत को ही तो कैवल्यम बोलते। कैवल्यम मतलब वननेस। वननेस, नॉट वन, वननेस इज अ डिफरेंस वर्ड। दो का एक हो जाना इज कॉल्ड वननेस, नॉट वन। दो एक हो चुके होंगे उसको भगवान बोलते हैं, उसको प्रेम बोलते हैं। हरे कृष्ण। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, आपके दिमाग के अंदर जाने की जगह ही नहीं होगी, आप भर चुके हो। जो हो रहा है होता रहे, ठीक है। आपके अंदर से गाने निकलेंगे, व्हेन यूर इन माय आर्म्स नथिंग सीम्स टू मैटर, माय होल वर्ल्ड कुड शैटर, आई डोंट केयर। ऐसे ऐसे, मतलब ये चाहे वो पोएट्री बन जाए, चाहे वो स्क्रिप्चर्स बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, गीत निकलेगा, भगवत गीत। उसको हम गीता बोल देंगे, भगवत गीता। वो तो डिवाइन सॉन्ग है ऑफ लव। सारे 18 चैप्टर्स फजूल की बातें हैं। फाइनली तो श्री कृष्ण यही बोलते हैं ना, मुझसे प्यार कर लो ना अर्जुन, मन मनो भाव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु। फाइनली तो यही कहते हैं ना, इतना कुछ पढ़ा सिखा के उसको बोलते हैं मेरे से प्यार कर लो ना। और अर्जुन का प्रेम है परिपक्व, इसलिए उसको उसके दर्शन हो जाते। क्योंकि अनन्य भक्ति के सिवा तो और कोई तरीका नहीं है। अनन्य भक्ति मतलब ट्रू लव, अनन्य भक्ति ट्रू लव। कुछ नहीं और चाहिए, बस तुम्हें चाहिए। ये जब संभव हो जाएगा तो कुछ पढ़ना, कुछ सीखना, कुछ भी जानने को रह ना जाएगा। जब जानने को नहीं रह जाता तो उसको क्या बोलते हैं? वेदांत। वेदांत कोई सब्जेक्ट थोड़ा है, कोई किताब थोड़ा है। वेदांत हो चुका होगा, वेदांत इज ए हैपनिंग। सिमरन हो चुका होगा, तब आप थोड़ा कहेंगे सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सिमर तो हो चुका होगा सिमरन। याद आ गई, याद ही तो नहीं थी ना, पहले तो याद करना, फिर याद रहना, फिर याद आ गई। जब याद आ जाना तो बस हो चुका है जो भी होना चाहिए। ये जिंदगी would have found its culmination. And this can happen at any age. It can happen as an adolescent, it can happen in middle age, it can happen in old age। जिस दिन भी हो जाए तो उस दिन आप यंग हो गए। जिस दिन भी हो गया उस दिन आप यंग हो। हरे राम। और जब तक बाहर ढूंढते रहेंगे कंपनीज, तब तक भगवान पीछा करता रहेगा, अंदर ढूंढो ना मुझे, मैं तो अंदर हूँ, बाहर थोड़ा। बाहर से तो ऐसे ही कुछ किताब बन के आ जाता हूँ, भगवत गीता बन के आ जाता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब बन के आ जाता हूँ, कुरान शरीफ बन के आ जाता हूँ। ताकि तुम किसी दिन अंदर भी देखना, सीख लो मुझे। सीख लो क्या, ये सीखने वाली चीज थोड़ा है। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं, अरे कोई सिखाया थोड़ा जा सकता है। प्रेम नगर की डगर दिखा दूं।
दिल की धड़कन क्या होती है, ये अनजाना राज बता दो। क्योंकि राज है दिल की धड़कन, तो सब कार्डियोलॉजिस्ट को, सब डॉक्टर्स को, आपको भी पता ही है, टक 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 करता रहता है। ये वाली नहीं, सचमुच की धड़कन क्या होती है, जब सारी बॉडी रेजोनेट करेगी, जब कुछ कुछ कण कण में होगा, हरे कृष्ण, तो आपको झलक मिलेगी कि प्रेम क्या होता है। फिर श्री कृष्ण को थोड़ा बोलना पड़ेगा, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यः प्रयाति त्यजन्ते हम स याति परमाम गतिम। ये याद नहीं करने पड़ेंगे श्लोक, ये आपके अंदर से निकलेंगे कि मैं तो वो वाइब्रेशन हूं जो तुमको अलाइव कर देती है। जब तुमको मैं हो जाता हूँ, मैं हो जाता हूँ मतलब प्रेम हो जाता हूँ। जब तुमको भगवान हो जाता है ना, भगवान एक हैपनिंग है, सो भगवान हो जाता है आपको। भगवान मिलता नहीं है, भगवान हो जाता है। जब आपको भगवान हो जाएगा, तब पता चलेगा ये जिंदगी क्या है। हरे राम, वाहेगुरु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।